टाइमिंग कहाँ चला गया? ऑल राइट, तो let's start chemical properties of alkanes again. Yesterday we had studied catalytic oxidation, different reactions which are under catalytic oxidation of alkanes. Today let us study another type of chemical property or chemical reaction of alkanes, that is isomerization reaction. So next type of reaction that alkanes follow is isomerization reaction. Isomerization reaction. Is the board visible to you? Yes, sir. Ruvisha? Yes, sir. Okay, ठीक है, fine. So write down. When alkanes are heated with aluminium chloride, when alkanes are heated with aluminium chloride in presence of dry HCl gas, मतलब कंडीशन क्या हो गई? AlCl3 के प्रेजेंस में अल्केन को हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, और हमने हीट किया इसको. दिस इज द कंडीशन व्हेन अल्केन्स आर हीटेड विथ AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस. ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन. देन द आइसोमर्स, और यहाँ पे प्रेशर कितना? 35 atm. ये बच्चा क्या है? कंडीशंस. ठीक है, सो alkanes having how many number of carbon atoms must be required for isomerization? More than 3. क्योंकि अगर 3 आइसोमर लोगे तो फिर 3 कार्बन एटम वाला मेंबर लोगे तो उसमें आइसोमर होगा ही नहीं, पोजीशन आइसोमर. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मस्ट बी मोर देन 3, दैट इज 4 और मोर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन ब्यूटेन. ठीक है, सो अल्केन्स हैविंग 4 or more number of carbon atoms when heated with AlCl3 in presence of dry HCl gas at a pressure of 35 atm and 573 Kelvin temperature, then they get branched and produce position isomers. अब इसका पोजीशन आइसोमर क्या हो सकता है? CH3 CH CH3 CH3. ब्यूटेन का ये पोजिशनल आइसोमर हो गया. रिएक्शन क्या हो जाएगी? आइसोमराइजेशन रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज वन आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर आइसोमर. ये हो गया एन ब्यूटेन, और ये क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटेन. और 2 मिथाइल प्रोपेन. इस रिएक्शन में हुआ क्या बच्चों? देखो आप, एक नॉर्मल अल्केन था हैविंग कार्बन एटम मोर देन 4. व्हेन हीटेड अंडर दिस कंडीशन gets converted into its positional isomer. Therefore, the reaction is known as isomerization reaction. If we take another example, hexane CH3 CH2 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 CH3. How many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5 6. Name of this alkane will be N-hexane. If this compound is heated in the same condition, that is in presence of AlCl3 and dry HCl gas at a pressure of 35 atm and 573 Kelvin temperature, then it will produce all the positional isomers of N-hexane. अब इसके पोजिशनल आइसोमर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन. सो प्रोडक्ट्स विल बी CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3. एक प्रोडक्ट तो ये हो गया. इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5. सो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन. एक तो ये हो गया इसका पोजिशनल आइसोमर, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 मिथाइल पेंटेन. सो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3.
नाउ नेम विल बी चेंज 1 2 3 4 5। अब थर्ड कार्बन एटम पे मिथाइल है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। तो दिस इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एक आइसोमर, नॉर्मल आइसोमर, दूसरे पोजिशनल आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? आ गया समझ में? Yes, sir. ऑल Yes, राइट, sir. गुड। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक जो एलिफेटिक कंपाउंड है, लाइक अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, जब वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। सो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अल्केन्स का ही एरोमेटाइजेशन होगा। एरोमेटाइजेशन अल्कीन्स का भी होता है, अल्काइंस का भी होता है। So whenever an open chain compound or aliphatic compound get converted into an aromatic compound, then the reaction is known as aromatization reaction. Here we are concerned about the aromatization reaction of alkanes. So we'll study the conditions under which alkanes get converted into aromatic hydrocarbons. So write down, when alkanes with 6 or more carbon atoms, when alkanes with 6 or more carbon atoms are heated to about 773 Kelvin temperature, 10 to 20 atm pressure, 10 to 20 atm pressure, in presence of catalytic mixture of vanadium oxide, chromium oxide and molybdenum oxide, supported over alumina gel. मतलब V2O5 ले लिया हमने, वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला V2O5, ठीक है, या Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना जेल मीन्स Al2O3। डॉट Al2O3 का मतलब क्या है? हमने Al2O3 लिया है, Al2O3 के ऊपर डिपॉजिट किया है क्या? ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम। तो दिस विल बी कैटालिटिक मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, chromium and molybdenum supported over alumina gel. Temperature required is 773 Kelvin and pressure required is 10 to 20 atm. The alkane must contain at least 6 carbon atoms for aromatization reaction. That means we can write CH3, CH2 whole 4, CH3. अब देखिए इसमें क्या हो गया, एक कार्बन CH3, बीच में CH2, 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 4 बार CH2 है, और एक और CH3 मीन्स द कंपाउंड इज एनहेक्सेन। ठीक है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, सबसे पहले तो किस में कन्वर्ट होगा? साइक्लोहेक्सेन में। ये कंपाउंड बन गया क्या? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दो दो CH2 दो दो H सभी जोड़ दीजिए आप, तो ये हो गया आपका CH2, 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 उसके बाद CH2, CH2। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और जब ये साइक्लोहेक्सेन बना तो कैसे बना साइक्लोहेक्सेन? कितने हाइड्रोजन बाहर निकल गए? इसमें टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितने हैं। 4 2 8, 8 + 6 14। यहाँ पे कितना है? 6 2 12, मीन्स 1 H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, सो -H2। लेकिन ये रिएक्शन अभी यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, फर्दर देयर विल बी लॉस ऑफ 3 H2 मॉलिक्यूल्स। अब साइक्लोहेक्सेन से 3 H2 मॉलिक्यूल्स मतलब हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और निकलेगा, तब जाके क्या बन जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। बेंजीन बन गया इससे। जब भी हम हेक्सेन को इस कंडीशन में
पूरी कंडीशंस में हीट करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा साइक्लोहेक्सेन, विच विल सून गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। फाइन। इसी तरीके से अगर हम दूसरा कंपाउंड ले लें जिसमें 6 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, लाइक हेप्टेन ले लेते हैं, तो CH3CH2 होल 5CH3, दिस इज एन हेप्टेन। ठीक है, एन हेप्टेन को आपने इसी सेम कंडीशंस में हीट करना है आपको। 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 atm प्रेशर, एंड कैटेलिटिक मिक्सचर ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, chromium oxide and molybdenum oxide supported over Al2O3 or alumina gel. Then the product will be, यहां से मिटा रहा हूं इसको मैं। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन में एक CH3 ऊपर और जुड़ा रहेगा। तो सबसे पहले बनेगा साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, CH2 यहाँ पे लिखिए CH बस, और उससे जुड़ गया एक और CH3, फिर CH2। कितने हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देन इट विल फर्दर लूज 3 moles of hydrogen and will form toluene or methyl benzene. मिथाइल बेंजीन और टॉल्यूइन विल बी फॉर्म्ड। अब बच्चों जितना यहाँ पे कार्बन बढ़ता जाएगा उतना ही ऊपर साइड चेन पे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, अल्काइल ग्रुप में कार्बन बढ़ते जाएंगे। अगर हेप्टेन की ऑक्टेन ले लेंगे तो मिथाइल की जगह पे ऊपर इथाइल हो जाएगा, नोनेन लेंगे तो ऊपर प्रोपाइल हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग उसमें रहेगी। So this reaction is known as aromatization reaction of alkanes। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स। अगर आपसे सिर्फ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन पूछा तो आप अल्केन्स का भी लिख सकते हो, अल्कीन्स का भी लिख सकते हो, अल्काइंस का भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आएगा आगे आप पढ़ोगे इसको भी, अल्कीन्स का भी एरोमेटाइजेशन और अल्काइंस का भी। और एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स बोला तो फिर सिर्फ अल्केन्स का लिखना है। ठीक है, रिटर्न। हाँ सर बेटा। सर एक बार सर वो यहाँ से सर डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दो सर। प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ क्या था ओके, सर मैं उसके पूरा आगे? बोल देता हूँ। व्हेन अल्केन्स विथ सर 6 or more कार्बन एटम्स आर हीटेड to about 773 Kelvin under high pressure of 10 to 20 atm in presence of oxides of chromium, vanadium and molybdenum, in presence of oxides of chromium, vanadium and molybdenum supported over alumina gel, alumina मतलब Al2O3, supported over alumina gel, then corresponding aromatic hydrocarbon are formed. Then corresponding aromatic hydrocarbon are formed. The reaction is known as aromatization reaction. All right. Next reaction is reaction with steam. Reaction with steam. अगर हम अल्केन्स को स्टीम के साथ रिएक्शन करें, स्टीम जानते हैं ना, वाटर वेपर्स, वेरी हॉट वाटर वेपर्स जो बॉइलिंग के टाइम पे निकलते हैं। ठीक है, सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस मेथड से हम मीथेन को मिथाइल अल्कोहल में मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू सिन गैस। सिन गैस क्या होता है अभी बता रहा हूँ आपको। तो इसमें रिएक्शन क्या है, CH4 गैस हीटेड विथ H2O गैस
then it produces a mixture of carbon monoxide gas plus hydrogen gas. ठीक है, और ये कंडीशन क्या रहेगी? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, टेम्परेचर 1273 केल्विन। अब आप लिख लीजिए इसको, मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 केल्विन। मीथेन reacts with steam at 1273 Kelvin in presence of nickel as catalyst. In presence of nickel as catalyst to produce mixture of carbon monoxide gas and hydrogen gas. Mixture of carbon monoxide gas and hydrogen gas which is known as synthesis gas or syngas. सिंथेसिस, इसमें सिन गैस में जो SYN है, दिस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस गैस, इसको सिंथेसिस गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए काम होता है इसका यूज। सो मीथेन when heated at 1273 Kelvin with steam in presence of nickel as catalyst, then a mixture of carbon monoxide gas and hydrogen gas is produced. This mixture of carbon monoxide gas and hydrogen gas is known as synthesis gas or syngas. This mixture of carbon monoxide and hydrogen is called syngas because it is very useful for production of methyl alcohol and some other organic compounds. Next very important reaction is pyrolysis. Pyrolysis of alkanes. Pyrolysis of alkanes, इसी का दूसरा नाम है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग का मतलब बच्चों टू ब्रेक, तोड़ना। ठीक है, अब पायरोलाइसिस को अगर हम तोड़ें तो क्या होता है? पायरो मीन्स, पायरो इक्वल्स हीट, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, लाइसिस टू ब्रेक या ब्रेकिंग। सो ब्रेकिंग an organic compound या breaking an alkane upon heating is known as pyrolysis. ठीक है, pyro means heat और lysis means to break. So to break an alkane upon heating into smaller hydrocarbons is known as pyrolysis of alkanes or cracking of hydrocarbons. ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि एक लार्ज मॉलिक्यूलर साइज वाला जो अल्केन होगा, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर अल्केन एंड स्मॉलर अल्कीन। अल्केन टूट जाएगा, क्या बनाएगा? एक स्मॉलर अल्केन बनाएगा और एक स्मॉलर अल्कीन बनाएगा। मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन इज फॉर्म्ड अपॉन क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक डेकेन, सो CH3 CH2 8 CH3, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? ये टर्मिनल पे 2 और बीच में 8, 10 हो गए, इसलिए इसका नाम हो गया एन डेकेन। ठीक है, एन डेकेन को अगर हमने हीट किया, कितने टेम्परेचर पे हीटिंग रिक्वायर्ड है? 770 केल्विन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना आपको, एग्जाम में आपको ये टेम्परेचर तो याद होते नहीं है। अगर टेम्परेचर याद नहीं हो तो सीधे क्या लिख देना? हीट, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट टेम्परेचर लिखें, आप तो सीधे एरो के ऊपर हीट लिख दीजिए, दैट्स ऑल। वो अंडरस्टूड है कि हीट करना है। टेम्परेचर कोई नहीं याद करता, जो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं उसी में बस टेम्परेचर प्रेशर याद करना होता है। अदर आप टेम्परेचर के लिए सीधे लिख सकते हैं हीट और प्रेशर के लिए लिख दीजिए प्रेशर, मतलब प्रेशर इज अप्लाइड, दैट्स ऑल। वैल्यूज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब आप ये टेम्परेचर अप्लाई करेंगे डेकेन पे तो ये टूट जाता है, कई तरीके से टूटेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे?
मान लीजिए एक बन जाएगा ऑक्टेन। ठीक, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 CH2 होल 6 CH3, ऑक्टेन बन गया ये, प्लस CH2 C डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। सो स्मॉलर अल्कीन बन गया और एक ऑक्टेन बन गया। सिमिलरली वी कैन हैव हेप्टेन ले सकते हैं। सो CH3 CH2 होल 5 CH3, ये क्या हो गया, हेप्टेन। अब इधर हेप्टेन बनेगा तो अल्कीन कौन सा बनेगा, 3 कार्बन एटम वाला, मतलब प्रोपीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने एक और कार्बन कम कर दिया, हेक्सेन कर दिया, तो CH3 CH2 होल 4 CH3, ये बन गया हेक्सेन। ठीक, और जब इधर हेक्सेन बनेगा तो इधर क्या बनेगा, ब्यूटीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ब्यूट-2-ईन, प्रोडक्ट बन गया। हेक्सेन की जगह पेंटेन करेंगे तो उधर पेंटीन बनेगा। CH3 CH2 होल थ्राइस CH3, ये बन गया पेंटेन। ठीक, उधर बन जाएगा पेंटीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, पेंटीन बन गया। ठीक है, इधर ब्यूटेन लेंगे तो उधर हेक्सीन बनेगा। CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3, ये बन गया आपका ब्यूटेन। तो इधर क्या बन जाएगा, हेक्सीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2 CH2 CH3, हेक्सीन बन गया ये। इस तरीके से एक लार्जर हाइड्रोकार्बन जो है, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज का हाइड्रोकार्बन, वो एक अल्केन में टूटेगा और एक अल्कीन में टूटेगा। बट अल्केन और अल्कीन दोनों मिला के नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 8 कार्बन एटम है तो अल्कीन में 2 कार्बन एटम होंगे। यहाँ 3 कार्बन एटम है अल्केन, अल्केन में 7 है तो अल्कीन में 3 होंगे। अल्केन में 6 है तो अल्कीन में 4 होंगे। ठीक है, अल्केन में 5 कार्बन एटम है, मतलब पेंटेन है तो उधर पेंटीन होगा, 5 5 5 5 मिला के 10 होगा इधर। अल्केन में 4 है तो उधर 6 हो जाएगा। So this process of breaking of a large size alkane into a smaller size alkane and alkene is known as pyrolysis of alkane or cracking of alkanes. Understood? Children got it? ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next heading, uses of alkanes. This is all about chemical properties of alkanes. Next heading is uses of alkanes. उसके बाद अल्केन खत्म, अल्कीन्स चालू हो जाएगा। यूजेस ऑफ अल्केन्स, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 पॉइंट लिख लीजिए यूजेस में, दैट्स ऑल। कभी कोई पूछ ले तो पता रहना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, लोअर अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स। लोअर अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, मतलब कौन कौन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, are used as gaseous fuels in homes and industries. Are used as gaseous fuels in homes and industries. जैसे बताओ, मीथेन गैस का कहाँ पे यूज होता है होम्स में, किस रूप में यूज होता है? LPG. LPG. अरे मीथेन, मीथेन, CNG. हाँ सीएनजी में होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, और नेचुरल गैस में मीथेन होता है। वेरी गुड, सीएनजी है। और बायोगैस प्लांट से जो गैस निकलती है, ठीक है, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो मीथेन गैस। ठीक है, अब उसके बाद फिर एलपीजी में क्या यूज होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन सा होता है, 80% ब्यूटेन और 20% प्रोपेन।
प्रोपेन नहीं है तो इथेन भी हो सकता है उसमें। सो ये गैसियस फ्यूल्स में होम्स एंड इंडस्ट्रीज के में यूज होते हैं टिल कार्बन एटम नंबर 4। लेकिन कार्बन एटम नंबर 5 या 5 कार्बन एटम वाला अल्केन या उससे ज्यादा कार्बन एटम वाले अल्केन क्या होते हैं, दे आर लिक्विड्स। सो उनको फ्यूल्स के रूप में यूज नहीं करते। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, अल्केन्स आर यूज टू मेक कार्बन ब्लैक। अल्केन्स आर यूज टू मेक कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जानते हैं क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, किसी को पता है व्हाट इज कार्बन ब्लैक? इसका यूज कहाँ पे करते हैं कार्बन ब्लैक का? सर काजल में। वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। काजल, जो काजल लगाती है लड़की आंखों में, हमारी लड़कियां नहीं लगाती हैं, हमारे स्टूडेंट, लेकिन वो जो लगाते हैं कुछ लोग, तो वो काजल क्या होता है एक्चुअली, कार्बन ब्लैक होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो इंडियन प्रिंटर्स की जो इंक होती है, टाइपराइटर में जो इंक डलता है, प्रिंटर इंक में भी यही काजल या कार्बन ब्लैक यूज होता है। कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, एक अल्केन ले लिया, लिक्विड अल्केन्स ले लिया या वैक्स ले लिया, लिक्विड अल्केन जैसे केरोसिन ले लिया, और उसको हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के ऊपर एक बाउल से उसको ऐसे रख दिया जाता है, बाउल। ठीक है। तो जब ये जलेगा तो इसमें इससे शूट प्रोड्यूस होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और ये सूट बाउल के इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक। और इसी सूट को थोड़ा सा इसमें घी वगैरह मिला के पेस्ट जैसा बना लेते हैं और डब्बे में भर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काजल। लैक्मे का लोगे तो बहुत महंगा मिलेगा, और घर पे बना लोगे तो फ्री में बन जाएगा। रहता दोनों में एक ही है। ठीक। सो यू कैन राइट अल्केन्स आर यूज टू मेक कार्बन ब्लैक which is used in the manufacture of printing ink. Printing ink, comma, black paints, काला पेंट बनाने के लिए, एंड शू पॉलिशेस, जो शू पॉलिशेस होते हैं ब्लैक शू के, उसमें भी यही रहता है। सर प्रिंटिंग इंक के बाद क्या था? प्रिंटिंग इंक, ब्लैक पेंट्स एंड पॉलिशेस। सर एक बार पूरा यूज रिपीट कर दीजिए। Alkanes are used to make carbon black which is used in manufacture of printing ink, black paints and polishes. ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट यूज लिख लीजिए, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स gives useful compounds like gives useful compounds like alcohols, aldehydes and acids. Alcohols, aldehydes and carboxylic acids. आपने पढ़ा था ना भी, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन में क्या बना था, मीथेन का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन किया था तो मिथाइल अल्कोहल बना था। मीथेन का मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन किया था, फॉर्मल्डिहाइड बना था। और क्या नाम से, इथेन का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन किया था मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में, तो इथेनॉइक एसिड बना था। So this is all about alkanes, children. Next we are going to start alkenes. ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon double bond carbon bond, at least one carbon double bond carbon bond. Their general formula is CnH2n. ये इनका जनरल फॉर्मूला हो गया, CnH2n।
ठीक है। अब अल्कीन्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर। स्ट्रक्चर एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किया कि नहीं किया बताओ। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। जनरलाइज करके सबके लिए पढ़ लिया तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक। देन नेक्स्ट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स कर लिया है, सीस एंड ट्रांस वाले। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स we have already studied in the previous chapter, so no need to discuss it again। ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसमें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स यहाँ से हम पढ़ना चालू करेंगे, बाकी का सब हमने पहले ही पढ़ रखा है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें से फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स मीन्स RX। कैसे बना सकते हैं हम अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स, याद है किसी को? हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स? मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, पिछले चैप्टर में GOC में। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स जिसमें एक हाइड्रोजन भी निकलता है, एक हेलोजन भी बाहर निकलता है एडजेसेंट कार्बन एटम से, और इस रिएक्शन में एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है बीटा पोजीशन से, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स alkenes are formed by, from alkyl halides alkenes are formed by beta elimination reaction, by beta elimination reaction। ठीक है, from alkyl halides alkenes are obtained by beta elimination reaction। In this reaction, an alkyl halide having beta hydrogen atom, in this reaction an alkyl halide having beta hydrogen atom, देखो ये जो लिखा है ना, एक क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ये अल्फा कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच है, इसके बाद ये बीटा हाइड्रोजन एटम वाला। तो एन अल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम is heated with alcoholic solution of KOH। किसके साथ हीट करना है इसको? हीट विथ KOH। लेकिन ये KOH एक्वस नहीं है, इसलिए AQ नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? ALC। ALC मीन्स अल्कोहलिक। इसका मतलब KOH मिक्स विथ इथेनॉल, KOH मिक्स विथ इथाइल अल्कोहल, सो दिस इज अल्कोहलिक KOH। यहाँ पे एक्वस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ALC। ALC मीन्स अल्कोहलिक। सो व्हेन अल्काइल हैलाइड
having beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of KOH, then there is removal of halide ion from alpha carbon atom and beta hydrogen atom from beta carbon atom. As a result, alkene is formed. ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा? C, देखो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या हाइड्रोजन निकला, यहां से हैलाइड आयन निकला। सो हाइड्रोजन निकलने का मतलब क्या? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और हैलाइड आयन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो X निगेटिव बनाएगा। H+ X निगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? HX। अब कार्बन पे यहाँ पे कितनी वैलेंसी? 1, और ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसलिए इसकी दोनों वैलेंसी आ गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया C, ये हो गया अल्कीन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल के रूप में जैसे ले लें CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी CH3CH2, CH3CH2CH2CH3, ये ले लिया, ये हमारा यहाँ पे ले लिया, ये मान लीजिए X। तो ये हो गया अल्फा कार्बन एटम, ये हो गया बीटा कार्बन एटम। नेम ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी 2 हेलो ब्यूटेन। ठीक है, 2 हेलो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसको आपने हीट किया किससे? इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। सो व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म्ड? अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें दोनों साइड बीटा कार्बन एटम है। इधर हेलोजन है, ये भी बीटा है, तो ये भी बीटा कार्बन एटम है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल इधर से भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास इधर भी बीटा कार्बन एटम, ये अल्फा कार्बन एटम, उसके लेफ्ट साइड में बीटा कार्बन एटम, उसके राइट साइड में भी बीटा कार्बन एटम। सो हाइड्रोजन का रिमूवल अल्फा का राइट साइड वाले बीटा कार्बन से भी हो सकता है, लेफ्ट साइड वाले बीटा कार्बन से भी हो सकता है। इसका मतलब देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने नहीं लिया होता CH3, तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनता है इस साइड से। दोनों साइड CH3 इधर CH3 कार्बन लिया, इधर भी कार्बन है, ये 2 हेलो है, इसलिए तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3, दैट इज ब्यूटूइन। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट1इन। ठीक, इस केस में जब इस टाइप का है कि हेलोजन अल्फा कार्बन एटम पे प्रेजेंट है एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, one towards right side, one towards left side, then one of the product will be major product and another will be minor product. ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया 80%, और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट 20%। माइनर प्रोडक्ट 20%। ठीक, अभी कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? दैट इज डिसाइडेड बाय ए रूल विच इज नोन एज सेट-जेफ्स रूल। सेट-जेफ्स रूल। ठीक है, एक्चुअली मैं ये एग्जाम्पल पहले नहीं लेना था, पहले सिंपल वाला एग्जाम्पल लेना था। मैंने एग्जाम्पल ये लिख दिया तो ये अपने आप आ जाएगा कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसमें से एक प्रोडक्ट मेजर होगा 80% बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा मात्र 20% बनेगा। कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स विच आर गाइडेड बाय ए रूल नोन एज सेट-जेफ्स रूल। ठीक, सो आप इसके बाद, इस एग्जाम्पल के बाद हेडिंग डाल दीजिए सेट-जेफ्स रूल। सर जो नीचे वाली रिएक्शन है हम्म, सर, उसमें हेलो, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है? मतलब एक बार आप रीड कर दीजिए। प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH
CH3, ठीक है। नेम वुड बी ब्यूटूइन, यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटूइन। ये मेजर प्रोडक्ट है, 80% है ये। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा प्लस साइन लगा के लिख दो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब कार्बन एटम नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूट 1इन। ब्यूट 1इन विल बी माइनर प्रोडक्ट, इट विल प्रोड्यूस ओनली 20%, जबकि ब्यूट 2इन जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इट विल बी 80%। ऐसा क्यों होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय ए रूल नोन एज सेट-जेफ्स रूल। ये है सेट-जेफ्स रूल, ठीक है। चलिए टाइम हो गया क्या? व्हाट इज टाइम राइट नाउ? कैन एनीवन टेल मी करेक्ट टाइम? 12:15. 12:15। सो ओके, विल बाइंड अप हियर। सेट-जेफ्स रूल हम कल पढ़ेंगे सुबह, ठीक है। सुबह का टाइमिंग आपको पता है? 9 बजे। 9 बजे, ओके। तो 9 बजे कल सुबह हम लोग उसको पढ़ेंगे, सेट-जेफ्स रूल।